जवाहर नवोदय विद्यालय की एक क्लासरूम है, जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि सर पढ़ा रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। ये कैमरा लगाइए, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टॉपिक है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। Can all be together. वेलकम सर, वेलकम। Thank you, sir. Sir, this is the topic. We are not afraid to die if Yes. we can all be together. Yes, sir. Okay, please put your book here Okay, and sir. explain this. What is the significance of this title? This is not title, but this is a dialogue. Yes, sir. This is Okay. dialogue. And sir, actually, this lesson is about self-motivation. If we are together, if we are means we all are together, our success means our chance of success means increase. We can conquer all the problems. Okay, we want to know from the students. Okay, this is we are not. Okay, stand please. We are not afraid to die if we can all be together. Okay, stand. What is the importance of this dialogue? How will you explain it? In our class. Not class. This is a universal dialogue. Yes, sir. Okay. What do you know about this? We are not afraid to die if we can all be together. Okay, stand please. Sir, this topic gives us self-motivation in our life to do something great in our life. Okay, and you? What is your opinion over this dialogue? We are not afraid to die. So if we are all be together, there is a least chance to die or sir to defeat with the problems. एंड वी वांट टू से हम अपने दर्शकों को, हिंदी बेल्ट के दर्शकों को बता दें कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय की 11वीं स्टैंडर्ड है, 11वीं क्लास है। ओके, अच्छा, जो ये आप किताबों में पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली लाइफ में कितना सच है, ये रॉ पूरी बताएगी। जो आप किताबों में पढ़ते हैं क्या वो हमारी जो वास्तविक जीवन है उसमें भी अप्लाई होता है? Sir, that was to tell us about we should in unity and sir, we should live in our community, in our Okay, sir, please. And this is my last question, sir. This is we are not afraid to die if we can all be together because the viewers who belong to Hindi belt. Yes, sir. Please tell in English as well as in Hindi, as you like. You just express this. First of all, within 3-4 lines in English and within 3-4 lines in Hindi, explanation of this dialogue. Sir, You please look actually, here. this Sir, is, actually, the world is full of problems. In society, in our family, in the world, we are facing problem, a lot of problem. But if we face the problem collectively, means together in unity, then we definitely will means overcome that problem. This is the message of this lesson. This is a wonderful and beautiful lesson, and it motivates and means our children. okay. Who has uttered the dialogue in this chapter? Okay. Yes, sir. This chapter is, as my sir say. No. Who has spoken? Who spoke this dialogue in this chapter? Sir, narrator, of course. Yeah. Jonathan, who was 6 years old, I think. Okay. And a 6-year-old child, and who has a dedication to his father during the disaster in the sea. Okay. And this is the class of 11th standard. And You want to say something? okay, would you like to say something? Okay, stand. Ask. Speak. Yeah. So in this chapter, the authors want to motivate her child because they support him through many ways. And to speak offline and to speak online is absolutely different thing. However, the students are capable, but they express their hesitation here. In spite of it, they made attempt to say something here, and this is the reality. This is the real situation of 11th standard in जवाहर नवोदय विद्यालय। और जवाहर नवोदय विद्यालय की एक और क्लास है, इसमें भी देखते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट किस तरह पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, उनका क्या कंसंट्रेशन है। वेलकम सर, वेलकम सर। जी सर, आपका टॉपिक क्या है, ये टॉपिक बताइए। ये कवितावली है और तुलसीदास जी की एक रचना है जो ब्रज भाषा में है और उत्तरकांड से इसमें 2 पद लिए गए हैं। उन 2 पदों को आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पहले हम इनको गाना सिखाएंगे और उसके बाद किस संदर्भ में तुलसीदास जी ने इनकी रचना की है इसके बारे में जानकारी देंगे। दिखाइए, कैमरे से दिखाइए। सभी किसान कुल बनिक भिखारी चाकर चपल नट चोर चार चेट की
पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिल अटत गहन गन आहन अखेट की और ये देखे बड़े रिदम के साथ यहाँ पर क्लास चल रही है। सर बताइए, ये जो आप पढ़ा रहे हैं इनकी हिंदी में व्याख्या क्या है? ये जो दोहा है ना, ये एक तरह से हमारे जो किसान है, कृषक वर्ग है, जो हमारा समाज है, तुलसीदास जी कोई साधारण कवि नहीं है, वो असाधारण कवि हैं और वो अपने समय से बहुत आगे सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सरकार 3 बिल लाई कृषि कानून के बिलों को लेकर के, और उसके पीछे मकसद ये था कि जो है ना, हमारे जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो। लेकिन सरकार आज ये सोच रही, लेकिन इससे कितने साल पहले 14वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने इनकी दुर्दशा का वर्णन किया था। तो कहते हैं कि खेती न किसान को, यानी कि उस समय पर 14वीं शताब्दी में जब ये इन्होंने एक मिनट सर, आपके पास आते हैं, थोड़ा बच्चों से भी बात करेंगे। आप भी खड़े होकर बताइए कि आप जो तुलसीदास को पढ़ रहे हैं, तुलसीदास पढ़ रहे हैं ना सर, आप तुलसीदास पढ़ रहे हैं, तो तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या जानते हो? तुलसीदास जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बहुत सारी ब्रज भाषा में बहुत सारी कविताएं बनाई, दोहे बनाए। अच्छा, क्या विशेष प्रभाव आपकी जिंदगी पे पड़ा है कवि तुलसीदास जी का? तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। वो भक्ति काल के कवि थे और उनकी क्या होता है भक्ति काल? सर, जहाँ पर जिस काल में भक्ति भगवान को अपनी कविताएं उन्होंने, यानी वो जमाना, वो दौर, वो युग सिर्फ भक्ति का था, लोग भक्ति में डूबे हुए थे, या सिर्फ तुलसीदास भक्ति में डूबे हुए थे? सर सभी लोग जो कवि की रचनाएं थी वो भक्ति से। आप भी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहते हैं कि भक्ति काल के कवि थे, क्या मतलब है इसका? जो अपनी कविताएं बनाते थे सब मतलब भगवान को अपना वो मान के उसके लिए समर्पित, डेडिकेटेड टू गॉड। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो तुलसीदास जी है, उनकी कोई विशेष लाइन जो आपको बहुत प्रभावित करती है? सर, मुझे किसान के बारे में जो कविता है किसान के लिए, इसकी सबसे अच्छी कविता यही लगी है और इसकी फर्स्ट लाइन है ये वाली, इसके बारे में बहुत अच्छी लगी। क्या लाइन है, पढ़ के सुनाइए। किस भी किसान कुल बनी भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, ये वाली कविता। जवाहर नवोदय विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं और सेंटर के अधीन होते हैं, हर जनपद में एक विद्यालय होता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये वो विद्यालय होते हैं जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के, प्रीडोमिनेंटली ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए वे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जिनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा होती है और जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ कमज़ोर होता है, तो सरकार उनको सपोर्ट करती है, कोऑपरेट करती है। और आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय मिर्ज़ापुर अम्बेटा चांद, जो जनपद सहारनपुर में पड़ता है, वहीं उसी विद्यालय के ऑफिस में हैं। उनके प्रधानाचार्य जी जो हमारे बराबर में बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर रिटन टेस्ट किस तरह से होता है, यहाँ की सुविधाएं किस तरह, क्या क्या सुविधाएं देता है ये विद्यालय। इन्हीं सभी अहम कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारा दर्शक जानना चाहता है। वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए। सभी को सुप्रभात। मैं नवोदय विद्यालय सहारनपुर में एज ए प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैंने 17 अप्रैल 2023 में यहाँ ज्वाइन किया है और मेरा नाम राजकुमार गौतम, नवोदय विद्यालय अंबाला से ट्रांसफर होकर सहारनपुर में पहुंचा हूँ। राजकुमार गौतम जी, बताइए कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, क्योंकि अब तक भी 80% लोग ये नहीं जानते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी सुविधाएं दी है। तो इसको तफसील से बताइए कि ये है क्या, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं देता है। नवोदय विद्यालय स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा स्थापित मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किया गया, जिसका नाम परिवर्तित करने के बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया, जिसमें प्रतिभा, जो ग्रामीण प्रतिभा के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति से क्यों नहीं हो, लेकिन प्रतिभा यदि उनके पास में है तो उनका चयन नवोदय विद्यालय में चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। और चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से यदि डिस्ट्रिक्ट के अनुसार उसकी पॉपुलेशन जिस रेशो में है, उसी पॉपुलेशन के अनुसार उनका सिलेक्शन किया जाता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो 15% SC कैटेगरी और 7.5% ST कैटेगरी के बच्चे और बाकी 27% OBC कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है।
सर बताइए, यहाँ पर जो प्रवेश बच्चे लेना चाहते हैं जो 5th में है, तो वो किस तरह की बुक्स उनको पढ़नी चाहिए और उनको रीडिंग टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है? उन बच्चों को मैं सजेशन करूंगा कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें एक रीजनिंग होती है और एक गणित जो मैथमेटिक्स का ज्ञान है वो रहता है, और तीसरे में एक भाषा उनको सेलेक्ट करनी होती है। वो जो इजी भाषा अपनी समझ सकते हैं, यदि इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी को चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो यहाँ उर्दू को भी एक भाषा के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भाषा पर बच्चे का अच्छा कमांड है उसी भाषा में वो पेपर अपना सेलेक्ट कर पेपर में बैठेंगे, और पेपर में बैठने के पश्चात तीनों पोर्शन को उनको इक्वलिटी रूप में पास करना होगा, और कैटेगरी के अनुसार जो हमको एक लिस्ट प्रोवाइड होती है उसी के अनुसार 80 बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट से चयन किए जाते हैं। अच्छा सर, जैसा कि प्रीडोमिनेंटली उन बच्चों के लिए जो मतलब प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब माता पिता हैं, जिन बच्चों के माता पिता गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अशिक्षित हैं, उनको तो ये मालूम नहीं कि उनके बच्चे प्रतिभाशाली हैं भी या नहीं, और मिडिल क्लास अपने बच्चों को 2-2 साल तक लगातार तैयारी कराता रहता है, तो वो तो वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए स्पेशल क्या कहना चाहेंगे सर? जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों को मौका नहीं मिलता है, तो उन्होंने उन नहीं बच्चों सर, मौका नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि जो वंचित और शोषित वर्ग है वो ये नहीं समझ पाते कि उनका बच्चा प्रतिभाशाली है भी या नहीं, तो वहाँ पर मिडिल क्लास बहुत हावी है केंद्रीय विद्यालयों में जो हमने देखा है, तो वो बच्चे रह जाते हैं जो बहुत गरीब हैं, बिल्कुल अनएजुकेटेड है। ऐसे बच्चे कितने हैं जो वाकई बिल्कुल अनपढ़ माता पिता के बच्चे यहाँ पर हैं, कितने बच्चे ऐसे? मैं यदि अपने नवोदय विद्यालय सहारनपुर के रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो इस समय हमारे 4700 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं अभी, जबकि 31 लास्ट डेट है। तो ये रेशो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल तक हम पहुंच करते हैं। अच्छा, कुछ सरकार फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है 12th के बाद बच्चों को, अलग से कहीं और बच्चा जाना चाहे? फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन जेई और नीट के एग्जाम के लिए 1 साल की विशेष कोचिंग जो बच्चा उनका एक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और टेस्ट में जो क्वालिफाई होता है उसमें सेलेक्टेड बच्चों को विशेष कोचिंग नीट की और जेई की दी जाती है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन जिनका सक्सेसफुल हो जाए, मतलब वो कामयाबी से यहाँ पर सफलतापूर्वक अपना प्रवेश ले ले, तो उन्हें किस तरह से तैयारी और कितने टाइम तक तैयारी करनी चाहिए? तैयारी के लिए यह है कि यदि वो बच्चा रीजनिंग के लिए, क्योंकि उसका रीजनिंग एक सब्जेक्ट में रहता है और 40 जो क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग के ही आते हैं। और ये प्रधानाचार्य जी नवोदय के